Good morning, students. In the last session, we had discussed about functions of stock exchange, and right now we have the concept importance of stock exchange. Why stock exchange is important? So please note this portion is deleted from the syllabus. Then also quickly we will go through since knowledge is important rather than the syllabus. Okay. So, from the investor's viewpoint, they have divided importance in three parts: from investor's viewpoint, from company's viewpoint, and from society's viewpoint. From investor's viewpoint, most important point is about information. Through stock exchange, we get many useful information like price of a share, about management of a company, board of directors of a company, and about minutes of meetings or board's decisions. Okay, about balance sheet, profit and loss account, or performance of a company. So many useful information is available from the stock exchange. Ready market, investor can easily sell its securities. Investors interest is protected. Stock exchange actually uh, try to protect the investor. If you are paying the money, then you will get the share. If other person is not having the share, then stock exchange will buy from the market and give it to you, and it will take action against the defaulting seller. So investors interest is protected. So when you are selling the share, you will get the money regardless of whether the money is there in buyer's account or not. Genuine guidance about the securities being listed. Investors are guided by stock exchange. Okay, and they try to avoid malpractices by the brokers. Then barriers of distance is removed because now it is computerized, okay, digitalized. So even when you are in a village, if you have net connection, then you can buy and sell. Knowledge of profit or loss on investment. Okay, many brokers provide various reports, and these are called MIS, management information system, or the reports generated by the software. So you कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन कि वो शेयर कब लिया था, कब बेचा था, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, या एनुअल कितने परसेंटेज अर्निंग हुई. फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपनीज, if companies list their shares, it becomes recognized. Every investor from India will be able to recognize that company. Wide market means any person across the India, okay, or even across the world can invest in your company. And we know that indirectly foreigners can also invest in your company, okay, through IDRs, Indian depository receipts. Higher share value. Generally, if you are performing well, then many persons will be willing to buy your shares, then price will be more. Then from viewpoint of societies, rapid capital formation. There is a stock market, hence we can easily move our funds. Just by opening demat account, we can invest in shares of very good companies. So it is capital formation. I always believe as a student, you are very टेक्नोलॉजिकली एडवांस. आप सबको क्या है, अमेज़ोन से बाय करना बहुत अच्छा लगता है. बट सेम थिंग यू कैन डू फॉर दिस इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो. ओके, फ्रॉम योर मोबाइल ऐप यू शुड ट्राई टू इन्वेस्ट. ओके, नॉट डू एक्सपेंस. अमेज़ोन से करो, उससे अच्छा है म्यूचुअल फंड ले लो, कोई शेयर्स में इन्वेस्ट कर लो. ओके, कोई डिफ़िकल्टी है तो मुझे बताना, बट यू शुड कल्टिवेट दिस हैबिट. हमें स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है. स्मार्ट बिजनेसमैन खर्चा नहीं करता, इन्वेस्टमेंट करता है. देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दिस पॉइंट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड. Okay, in functions, it leads to economic development. Funds are used for productive purpose, and hence it will lead to national prosperity. It is just for your information. Securities Contract Regulation Act, there is one act. Okay, it controls the transactions in securities. And
It was passed in 1956. So now the stock exchanges are governed by these acts, and uh, they have given history of stock exchange in India, but mainly Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange is important. Okay, name of the stock exchange Bombay. This one is very important. And year of establishment, it was recognized in 1956, लेकिन उससे काफ़ी साल पहले ही, अराउंड 80 ईयर्स पहले ही वो फंक्शनिंग था. एंड देन वी हैव NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. It is headquartered in Delhi. Okay, so both are important stock exchanges. Then we have next concept, powers of governing body. Governing body is a body which governs the functioning of stock exchange, and it is responsible for the smooth function of stock exchange. So they can elect the office bearers. वो कौन से पर्सन स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्टर्स रहेंगे उनको वो इलेक्ट कर सकते हैं, कमिटीज़ बना सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज की. ये गवर्निंग बॉडी के पावर्स है. गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, यानी यहाँ पर दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट हु इज़ गवर्निंग स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज के लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ओके, जैसे कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, स्टॉक एक्सचेंज में वी हैव गवर्निंग बॉडी. तो वो ऑफिस बेरर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, कमिटीज़ बनाकर सेटअप कर सकते हैं. कुछ मेंबर्स मीन्स ब्रोकर्स. वी नो दैट के स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स होते हैं, तो ब्रोकर्स को एडमिट नए ब्रोकर्स बना सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं, एक्सपेल कर सकते हैं ब्रोकर्स को. फाइनेंस एंड प्रॉपर्टीज, स्टॉक एक्सचेंज की जो भी प्रॉपर्टीज़ है, लैंड एंड बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स एंड ऑल, और उसकी जो भी फाइनेंस है वो मैनेज कर सकती है. इट इंटरप्रेट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड बायलॉस, यानी काफ़ी बार सेबी के रूल्स रेगुलेशंस को इंटरप्रेट करके अप्लाई करना पड़ता है, तो ये कमिटी. सो दिस गवर्निंग बॉडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, इट्स लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी. कोई डिस्प्यूट्स है तो दे गिव डिसीजन. Adjudicate means giving decision for the disputes. Okay, and they conduct the affairs of the exchange. Stock exchange के business में वो contribute करते हैं. Now these are jargons. Jargon means specific terms, technical terms of the stock exchange. So ओपन मीन्स कौन से प्राइस पर वो स्टॉक या शेयर ओपन हुआ था मॉर्निंग में, ओपनिंग प्राइस, इट इज़ ओपन. हाईएस्ट प्राइस, लो का मतलब उस दिन का लोवेस्ट प्राइस. क्लोज का मतलब है जब मार्केट की टाइम ख़त्म हुए तब कौन सा फाइनल प्राइस था. तो ये चारों के चार एक जैसे हैं. ओके, वॉल्यूम का मतलब कितनी शेयर्स की क्वांटिटी उस पर्टिकुलर डे में बाय एंड सेल हुई थी. सो इट इज़ वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम हुआ था, कितना एक्सचेंज हुआ था. देन बिड, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखो. बिड का मतलब है बाइंग प्राइस एंड ऑफर का मतलब है सेलिंग प्राइस. ओके, ऑफर प्राइस या ऑफर प्राइस इज द सेलिंग प्राइस. बिड यानी बोली लगाना, बिड इज रिलेटेड टू बाइंग प्राइस. नाउ बिड क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, तो इट इज़ बिड क्वांटिटी. और ऑफ़र क्वांटिटी यानी कितनी क्वांटिटी सेल के लिए ऑफ़र हुई है, यानी मार्केट में कितने शेयर्स सेल के लिए अवेलेबल है. सो इट इज़ ऑफ़र क्वांटिटी. देन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, तो इट्स वेरी इजी. बाइंग मीन्स डिमांड एंड सेलिंग इज़ एक्चुअली सप्लाई. ये इम्पोर्टेंट है. शॉर्ट सेलिंग, हाँ, नॉर्मली जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो हम बेच नहीं सकते, पहले ख़रीदना पड़ता है फिर बेचना पड़ता है. बट शेयर मार्केट में शॉर्ट सेलिंग इज़ अलाउड. पहले बेचो फिर ख़रीदो. ओके, अब आप सोचोगे सर इससे फ़ायदा क्या होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि मुझे मॉर्निंग में अंदर से ऐसा लगा कि ये जो कंपनी का शेयर है उसका भाव गिरने वाला है, डाउन होने वाला है, बराबर.
तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही मार्केट ओपन होगा मैं ख़रीद लूँगा, मान लेते हैं सॉरी बेच दूँगा। मान लेते हैं मैंने स्टार्टिंग में जैसे मार्केट ओपन हुआ तब 100 का प्राइस था तो मैंने बेच दिया। हालांकि शेयर मेरे पास नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता, तभी के तभी शेयर होने कंपलसरी नहीं है। ओके, शेयर मार्केट में T+2 साइकिल फॉलो होती है, यानी आज मैं बाय का बटन प्रेस करूंगा तो मेरे डीमैट अकाउंट में 2 दिन के बाद शेयर आएगा। तो तभी के तभी शेयर ना हो तो भी चलता है। ओके, यहाँ पर वो बैंक अकाउंट की तरह नहीं है कि बैंक में पैसे हो तो ही वो होगा। तो शॉर्ट सेलिंग इज अलाउड। ये क्रेडिट कार्ड की तरह है शेयर मार्केट। क्रेडिट कार्ड में आपके पास पैसे नहीं है लेकिन बाद में अपने बैंक अकाउंट से बिल पे कर सकते हो, लेकिन पहले ही क्रेडिट यूज़ करके बाय कर सकते हो, तो ऐसा है। तो शॉर्ट सेलिंग मैंने मॉर्निंग में 100 रुपीज़ में शेयर सेल कर दिया, हालांकि शेयर मेरे पास है ही नहीं, मैंने सेल कर दिया। तो स्टॉक एक्सचेंज को पता है कि इस पर्सन से एक शेयर लेना है और उसको 100 रुपीज़ देने हैं, बराबर। फिर दिन के एंड में मेरा कैलकुलेशन सही हुआ, शेयर का प्राइस 95 होने लगा। तो मैंने क्या किया, 95 जब प्राइस हुआ था उसी दिन, तो मैं बाय का बटन प्रेस कर दूंगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि मैंने 95 में बाय कर लिया। इसका मतलब मैंने स्टॉक एक्सचेंज को उस दिन के एंड में मेरे अकाउंट में एक शेयर चाहिए, स्टार्टिंग में नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में ले लिया 95 में चलेगा। तो इसका मतलब स्टॉक एक्सचेंज ने याद रखा कि इस पर्सन से, मैंने रिपीट मैं अभी करवा रहा हूँ, पहले अभी मैंने बोला था कि स्टॉक एक्सचेंज को याद है कि इस पर्सन से एक शेयर लेना है और इसको 100 रुपीज़ देने हैं, बराबर। तो मैंने 95 में शेयर ले लिया, इसका मतलब है कि वो शेयर दिन के एंड में मेरे अकाउंट में आ गया और वो शेयर चला जाएगा, यानी वो ट्रांसफ़र हो जाएगा क्योंकि मैंने सेल किया था, और बदले में मुझे 100 रुपीज़ स्टॉक एक्सचेंज देगा। अब मेरा 5 रुपीज़ का फ़ायदा है, मैंने लिया था 95 में, स्टॉक एक्सचेंज मुझे 100 देगा, यानी 5 रुपया मैंने कमाया। ओके, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। ये तब यूज़ होता है जब आपको लगता है प्राइस गिरने वाला है तो पहले सेल कर दो, फिर गिरे हुए प्राइस में बाय कर लो तो फ़ायदा होगा। शेयर ट्रेडिंग यानी शेयर्स में बाय या सेल करना। ट्रांजेक्शन यानी वन साइकिल ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इज़ कॉल्ड वन ट्रांजेक्शन। देखो, वॉल्यूम में मैं अगर बाय करता हूँ तो कोई सेल भी कर रहा है, तो दोनों को मिलकर 2 ट्रांजेक्शन नहीं काउंट होंगे, एक ही ट्रांजेक्शन काउंट होगा। ओके, स्क्वायरिंग ऑफ मैंने अभी बताया था कि ये एक साइकिल कंप्लीट करनी है। मैंने सेल कर दिया, शॉर्ट सेल के रिलेटेड है, शॉर्ट सेल कर लिया, मैंने सेल कर दिया, मेरे पास शेयर नहीं था, स्टॉक एक्सचेंज को पता है कि भाई ये पर्सन से शेयर लेना है, तो अगर मैं भूल जाता हूँ, मान लेते कोई फंक्शन था मैं भूल गया, तो जैसे ही मार्केट क्लोज होगी तो क्लोजिंग टाइम पे ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर्स क्या करेगी कि जो भी मैंने शॉर्ट सेल किया है, मेरे अकाउंट में नहीं है लेकिन मैंने सेल किया है, वो क्लोजिंग प्राइस पर मार्केट में ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा, मेरे अकाउंट से पैसे चले जाएंगे और शेयर मिल जाएगा। इसको बोलते हैं स्क्वायरिंग ऑफ। स्क्वायरिंग ऑफ का मतलब है डे के अंदर आपकी जो पोजीशंस है उसको स्क्वायर ऑफ करनी है। स्क्वायर ऑफ करनी है मतलब आपने क्या है कि शेयर बेचा है तो आपके अकाउंट में वो शेयर होना चाहिए, बराबर, तो ये कंप्लीट होना चाहिए, इसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ। तो देखो, कंप्लीट वन ट्रांजेक्शन यानी अगर आपने बाय किया है देन यू हैव टू सेल, यानी सिंपल है, मैंने पहले सेल किया था तो मुझे फिर वो शेयर बाय करना पड़ेगा तो ही मेरे अकाउंट में आएगा। ये स्क्वायरिंग ऑफ तब होता है कि जब आपके पास शेयर ना हो और आप ट्रांजैक्शन करते हो। ओके, और दूसरा ये है कि अगर हमने बाय किया है, बराबर, शेयर बाय किया है, इंट्राडे की बात कर रहे हैं, स्क्वायरिंग ऑफ इंट्राडे में होता है। इंट्राडे में क्या होता है कि मकसद है शेयर लेना बेचना नहीं होता, मकसद है सिर्फ प्रॉफिट कमाना, तो स्क्वायरिंग ऑफ इंट्राडे में होता है। इंट्राडे का मतलब एक ही दिन के अंदर आप अपनी पोजीशंस सेट कर लोगे। ओके, तो स्क्वायरिंग ऑफ का सिंपल मीनिंग है कि अगर सेल किया है तो बाय करो और अगर बाय किया है तो सेल करो, यानी आपके खाते में कोई भी शेयर नहीं होगा। ओके, सिर्फ पैसे का डिफरेंस ही आपको
दिया जाएगा या आपसे लिया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आपने प्रॉफिट किया है या लॉस किया है। तो स्क्वायरिंग ऑफ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये इंट्राडे में यूज़ होता है। और व्हेन आई से इंट्राडे, इसका मतलब है स्पेक्यूलेशन। इंट्राडे का मतलब है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है गैम्बलिंग, ओके, बट ये लीगली अलाउड है गैम्बलिंग। तो स्पेक्यूलेशन में क्या होगा कि या तो आप फर्स्ट बाय करोगे शेयर को और बाद में सेल करोगे, या फिर फर्स्ट सेल करोगे एंड बाद में बाय करोगे। ये मैंने बता दिया, इसको हम कहते हैं शॉर्ट सेल। पहले सेल करो फिर बाय करो, ओके। ये तब यूज होता है व्हेन वी फील प्राइस विल गो डाउन, ओके। एग्जाम्पल, 100 में सेल किया है एंड फिर 95 में बाद में बाय कर लिया है, तो 5 का प्रॉफिट होगा। और ऊपर वाली जो पोजीशन है, फर्स्ट बाय देन सेल, याद रखो बाय करते हो तो उसको ये भी कहा जाता है लॉन्ग पोजीशन, और जो सेल करते हो उसको कहा जाता है शॉर्ट पोजीशन, ओके। तो जो गैम्बलिंग करते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं, वो एक ही दिन में क्या है कि अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे। बाय है तो सेल करो, सेल है तो बाय करो, उसको कहते हैं स्क्वायर ऑफ। यानी उनके अकाउंट में कोई शेयर होता नहीं है, सिर्फ पैसे का डिफरेंस ही होता है। स्टॉक एक्सचेंज से पैसे मिलते हैं या वो पे करते हैं, डिपेंडिंग ऑन प्रॉफिट किया है या लॉस किया। और ये फ़ायदेमंद तब होता है कि व्हेन वी फील दैट प्राइस विल इंक्रीज। अगर लगता है प्राइस इंक्रीज होगा तो पहले बाय करो फिर सेल करो। एग्जाम्पल, मैंने बाय किया 100 में, ओके, फिर कुछ घंटों में प्राइस बढ़ गया, 110 हो गया, तब मैंने बेच दिया, तो मैंने फ़ायदा कमाया, ओके। लेकिन ये कभी कभी आपका कैलकुलेशन गलत बैठेगा तो नुकसान भी हो सकता है। देन लिमिट ऑर्डर, इसका मतलब है कि द ऑर्डर गेट एग्जीक्यूटेड एट योर मेंशन प्राइस। लिमिट ऑर्डर का मतलब है आपने बाय का जो प्राइस मेंशन किया है, देखो एक होता है कि बाय एट मार्केट प्राइस और दूसरा होता है बाय एट मेंशन प्राइस। सो लिमिट ऑर्डर का मतलब है कि मार्केट में भाव चल रहा है 102, लेकिन मुझे तो 100 में लेना है, तो मैंने बता दिया कि 100 में लेना है, यानी 100 का प्राइस होगा, उसको बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर का मतलब है कि ये वही प्राइस से आप ले सकते हो, यानी आपका मेंशन प्राइस है उसी से आप वो बाय करोगे, इसको हम बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। और दूसरा होता है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब ये है कि मार्केट में जो भी भाव होगा उस प्राइस पे आप बाय या सेल कर सकते हो। ये मार्केट ऑर्डर को एक और कहा जाता है कैश एंड कैरी। कैश एंड कैरी, जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है कैश पे करो और कैरी कर दो वो शेयर को, यानी खरीद लो। सो लिमिट ऑर्डर यानी आपके प्राइस पर आप खरीद सकते हो, लेकिन याद रखो 102 का भाव चल रहा है, आपको 100 में खरीदना है, ऑर्डर को कर दिया 100 में, लेकिन मार्केट में प्राइस अगर 100 होगा तो ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, वरना वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। उस दिन के एंड तक अगर प्राइस आया ही नहीं 100 तो नहीं हो सकता। तो स्टॉक एक्सचेंज में कंप्यूटराइज सिस्टम में यू हैव एडवांटेज। सो मार्केट ऑर्डर मीन्स जो भी प्राइस मार्केट में चलेगा उसमें वो बाय या सेल होगा। देन वी हैव कंसेप्ट ऑफ सेबी। प्लीज़ नोट, ये सेबी का पूरा कंसेप्ट उन्होंने डिलीट किया है 30% सिलेबस रिड्यूस करने की वजह से, बट आप खुद रीड कर सकते हो। सेबी के बारे में ब्रीफ में सिर्फ आपको बता दूंगा कि सेबी के पास स्टैट्यूटरी पावर्स है। सेबी एक्ट है 1992 जो पार्लियामेंट में पास हुई थी, जिससे ये गवर्न होती है, ओके। उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, मुंबई में उसका हेडक्वार्टर है और फिर ऑफिस है, और उसका मेन काम है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर नज़र रखना,
कंट्रोल करना, और अगर कुछ स्टॉक एक्सचेंज डिफ़ॉल्ट करती है तो फिर एक्शन लेना, उनकी माल प्रैक्टिसेस ब्रोकर्स की बंद करवाना और इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, सेबी का ये मेन काम है। ओके, ये ज़रूरी नहीं है सेबी में कौन कौन सी पोजीशन में है। ओके, कुछ आरबीआई से पर्सन्स होते हैं, गवर्नमेंट से होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और सेबी के पास क्या है, कुछ पावर्स है। ओके, कुछ लीगल पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, और रूल बनाने के लिए लेजिस्लेटिव पावर भी है। एंड यहाँ पर एक्चुअल पावर्स यहाँ पर लिखे हैं, वो क्या कर सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के बायलॉस, बायलॉस का मतलब है जस्ट लाइक कंपनीज के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, कोऑपरेटिव्स में बायलॉस होते हैं। बायलॉस यानी मेन रूल्स जो स्टॉक एक्सचेंज को गवर्न करने के, तो स्टॉक एक्सचेंज के बायलॉस को ये सेबी अप्रूव करेगा। तो ऐसा मान लो कि सेबी है ना, स्टॉक एक्सचेंज के फादर की तरह है। ओके, तो उनसे सब परमिशन लेनी पड़ती है। तो स्टॉक एक्सचेंज को अगर बायलॉस अमेंड करना है, चेंज करना है, तो भी सेबी का परमिशन ज़रूरी है, सेबी को इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी है। उनके अकाउंट्स यानी स्टॉक एक्सचेंज के अकाउंट से भी चेक कर सकता है और कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है। और कुछ कंपनी को क्या है, फोर्स कर सकते हैं, आप अपने शेयर इन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाइए। ओके, और जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, उनके ऊपर फीस या चार्ज लगा सकता है। ओके, स्टॉक एक्सचेंज को लाइसेंस भी ये दे सकता है। सो यू नो, आपको ओवरऑल आइडिया आ गई है। ओके, पेनल्टीज लगा सकता है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, और अगर कुछ वायोलेशन होता है कंपनीज एक्ट का, तो वो एक लीगल एक्शन भी ले सकता है। ओके, अगेंस्ट द कंपनी एज वेल एज अगेंस्ट द स्टॉक एक्सचेंज। So with this we are able to complete this chapter, and in the next session we will have doubt solving, and then it will be followed by the MCQ test. Okay, bye bye, take care.